Hello students and welcome to today's biology class. So in the previous class we were discussing about the applications of biotechnology in the field of agriculture, in the field of medicines. तो हमने बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स देखे जो यूज़ हो रहे हैं आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के डिफरेंट एप्लीकेशंस में. There is a very important aspect of use of biotechnology in making a certain group of organisms which are called as the transgenic animals. तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. what are transgenic animals, how they are made, and what are the different products we obtain from a transgenic animal. So a transgenic animal can be defined as those animals which have their DNA manipulated to possess and express a foreign gene. तो जो एनिमल्स कोई फॉरेन जीन अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ दैट जीन. दोज काइंड ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज transgenic animals. Now, why do we produce this kind of transgenic animals? There are certain reasons for the production of these animals. Basically, there are four basic reasons. The first reason is to study or to understand the normal physiology and development. तो हम अपने बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट समझने के लिए इनको यूज करते हैं. सी नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि इन ए लिविंग ह्यूमन बीइंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो स्टडी करना व्हेन ए ह्यूमन बीइंग इज कंप्लीटली लिविंग एंड फंक्शनल, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट. बट इफ यू मेक ए ट्रांसजेनिक एनिमल, आप एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हो जिसका जीन्स हमारी तरह बिहेव करता है और उसमें आप उस प्रोसेस को स्टडी करो, देन इट इज ईजियर. So that is the reason कि for normal physiology and development studies we are using transgenic animals. Besides that, to study the diseases. कोई भी पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करने के बाद कैसे रिएक्ट करता है, कौन से सेल को इन्फेक्ट करता है, सेल को इन्फेक्ट करने के बाद उसमें कौन से चेंजेस आते हैं, कैसे वो आपके बॉडी में डिजीज कॉज करता है, तो ये सब आप एक ह्यूमन पे टेस्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू दैट, दैट इज अनएथिकल. तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन जैसे ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं हैविंग सिमिलर जीन्स और हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज. On them we can test how these diseases are occurring, we can study these diseases. Biological products can be obtained, this we'll be discussing in the upcoming slides. And vaccine safety. Now the vaccines that we are developing, different medicines or different drugs that we are developing, तो वो कितना सेफ है हमारे यूज के लिए, वो पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है और अगर उनमें सक्सेसफुल होता है देन ओनली इट इज इम्प्लीमेंटेड टू द ह्यूमन बींग्स. सो दीज आर द फोर बेसिक रीजंस why we produce the transgenic animals. Now let's see how it is actually done. So पहला वाला आपका है to study the normal physiology and development. Transgenic animals are designed to study different aspects of genes, like how genes are regulated, how they affect the normal functioning of the body and development. तो ये हमारे जेनेटिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉडी कैसे फंक्शन करता है, हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, उसको जानने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज करते हैं. लाइक फॉर द स्टडी ऑफ इंसुलिन or the growth factor which is involved in the growth can be done by introducing the gene from other species that alter the formation of this factor. And the study of effect of and the results also, the information is obtained about the biological role of the factor in the body. तो ये सब चीज उस मॉलिक्यूल के बारे में, उस फिजियोलॉजिकल सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं. हम कोई भी हार्मोन अगर जानना चाहते हैं उसका क्या फंक्शन है, वी कैन इंट्रोड्यूस इट इनटू अ ट्रांसजेनिक एनिमल एंड वी कैन सी व्हाट चेंजेस इट इज ब्रिंगिंग. That is a very important aspect of the production of the transgenic animals. Second one, as I told you, for the study of different diseases, transgenic animals are models for human disease, in which investigation for new treatments for disease also gives understanding of on how these genes contribute to the development of a disease. तो ये भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि एक डिजीज कॉजिंग एजेंट, एक पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करने से वो किस टाइप का इफेक्ट कॉज करता है, जेनेटिक लेवल पे कैसे मैनिपुलेट करता है, उसके लिए क्या नए ट्रीटमेंट्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं. दैट ऑल कैन बी डन थ्रू द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. मॉडल ऑर्गेनिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक तरह से आपका कंट्रोल एजेंट की तरह काम करेंगे. these organisms will behave like our physiological system. तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनमें हमने जीन्स हमारा डाला हुआ है, वी एड आवर जीन्स टू दिस एनिमल्स. एज ए रिजल्ट देयर फिजियोलॉजी बिहेव्स लाइक आवर फिजियोलॉजी, तो इसीलिए उसको हम लोग मॉडल्स बोलते हैं. कॉमन एग्जांपल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स डिजीज.
So these are some of the example of diseases where the study is done through transgenic animals. Now this is the transgenic animal. In fact, आपके सामने जो भी picture है, this cow, it is the first transgenic cow, which is called as Rosie. Okay, and she was introduced with a human protein gene, which was making her milk more proteinaceous or more human-like milk. Okay, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ह्यूमन जीन है, इसको हम लोग इंसर्ट करते हैं इनटू ए गोट और ए डोनर एग सेल, देन दिस विल बी माइक्रो इंजेक्टेड इनटू अनदर होस्ट एंड देयर यू विल फाइंड कि एक ट्रांसजेनिक गोट प्रोड्यूस होगा, और ये ट्रांसजेनिक गोट जो मिल्क प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी ऑफ हाई क्वालिटी, जो रोजी के केस में किया गया था. वी इंट्रोड्यूस्ड ए ह्यूमन प्रोटीन जीन इनटू दिस काउ एंड दिस काउ स्टार्टेड टू प्रोड्यूस human like proteinaceous milk. Okay, so let us study biological products. तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ व्हिच आर मेडिसिन्स, कैन बी एक्सपेंसिव, ये थोड़े एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स व्हिच कोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, induce the organism to produce a desirable product in the growth medium. For example, human protein alpha 1 trypsin to treat emphysema. तो ये ह्यूमन प्रोटीन जो होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, वो एम्फाइसीमा ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. एम्फाइसीमा इज ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. जनरली दिस इज इफेक्टिंग दोज पर्सन्स हु स्मोक. तो जो स्मोक करते हैं तो स्मोक उनके लंग्स में जमा होता है एंड इट कॉजेज दिस काइंड ऑफ कंडीशन कॉल्ड एज एम्फाइसीमा. And attempts for treatment of phenylketonuria, that is PKU, cystic fibrosis, are also made by producing this kind of proteins through the transgenic animals. In 1997, the first transgenic cow called Rosie produced human protein enriched milk, that is lactabulmin. Now lactabulmin is a very nutritive substance which is generally not found in the cow milk. तो ये cow milk में नहीं होता. दैट इज द रीजन कि आप लोग देखोगे कि न्यू बॉर्न बेबीज को काउ मिल्क रेफर नहीं किया जाता, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन लैक्टाबुलमिन. लैक्टाबुलमिन इज ओनली फाउंड इन ह्यूमन मिल्क. तो हमने क्या किया, वो लैक्टाबुलमिन का जो जीन है उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एक काउ के अंदर. नाउ दैट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी. सी स्टार्टेड टू प्रोड्यूस मिल्क क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस. इट वाज हैविंग दिस प्रोटीन कॉल्ड एज lactabulmin. So this is how different kinds of biological products we derive. Besides that, vaccine safety and another one we can say chemical safety as well. दोनों एक साथ related हैं. Vaccine safety मतलब for the vaccine safety or for testing the vaccines, first they are tested on transgenic mice developed for the use of testing before its use in humans. एग्जाम्पल आपका पोलियो वैक्सीन. पोलियो वैक्सीन इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जिसको पहले आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमने टेस्ट किया था. वी फाउंड इट टू बी सक्सेसफुल, देन ओनली इट वाज गिवन टू द ह्यूमन बीइंग्स. इफ सक्सेसफुल and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of vaccine. तो मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे वैक्सीन जो ह्यूमंस में यूज किए जाते हैं पहले वो monkeys में टेस्ट करते हैं ना. monkeys are higher organisms, these are higher primates. So उनका यूज भी थोड़ा अनएथिकल बोल सकते हैं हम लोग. इट इज नॉट प्रिफरेबल बिकॉज दे आर मोर लाइक अस. तो उसको हम लोग माइस में कर सकते हैं. उस ब्रेन इज नॉट वेरी डेवलप्ड, दे विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ सेंसेशन और दे विल नॉट फील इमोशंस रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट्स डन टू देम. तो इसीलिए हम लोग ट्रांसजेनिक माइस ज़्यादा प्रीफर करते हैं. केमिकल सेफ्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद जीन्स व्हिच मेक देम मोर सेंसिटिव टू नॉन देन द नॉन ट्रांसजेनिक. Now then they are exposed to toxic substances to study its effect. तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस उसका टॉक्सिसिटी कितना है स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं which are very much sensitive to these chemicals. उसके बाद जब हम उनमें वो केमिकल्स एक्सपोज कर देते हैं तो हम देखते हैं कि वो केमिकल उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं. Now all the different kinds of cosmetic products and all the different kinds of daily use products that you are using, जो हमारे बॉडी में यूज होता है, मे बी थ्रू योर हाइजीन प्रोडक्ट्स और मे बी थ्रू योर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और मे बी थ्रू योर डेली यूज प्रोडक्ट्स, वो पहले टेस्ट किए जाते हैं ट्रांसजेनिक माइस में कि उसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है. तो इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे पहले टेस्ट करते हैं, देखते हैं उसका केमिकल सेंसिटिविटी कितना है. अगर वो ठीक है, इफ इट इज नॉट हार्मिंग दैट ट्रांसजेनिक एनिमल, इट्स नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी, देन इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ह्यूमंस. So toxicity testing in such animals will allow us to obtain better results. So these are the reasons why we make different kinds of transgenic animals. So students, this was the topic of transgenic animals. In the next class, we'll move on to the last topic of this chapter,
that is your ethical issues. Thank you. Thank you, everyone.